everyone. I'm Dr. Shafila from IGNUTOS. Welcome to session 75 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subjects of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNUTOS will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So learners, let's start with the first question of 75 session is, which of the following species of bird is found in New York? So कौन सी bird species न्यूयॉर्क में मिलती है या वहां की नेटिव है? ठीक है. So basically you have to tell कि कौन सी species अमेरिका की नेटिव है. So options are Indian vulture, Indian bustard, American woodcock या फिर बंगाल फ्लोरिकन. So अगर हम इंडियन वल्चर की बात करें, so Indian vulture is native to India, Nepal and Pakistan. Indian bustard की बात करें, this is also native of Indian subcontinents. ठीक है, तो ये भी Indian subcontinent का native है. अगर हम बंगाल फ्लोरिकन की बात करें, this is native of इसको बंगाल बस्टर्ड भी बोलते हैं. ठीक है, so बंगाल फ्लोरिकन is also known as Bengal bustard. It is also native to India, Indian subcontinent and Cambodia and also Vietnam. So Vietnam, Cambodia and Indian subcontinent का आपका native है in Bengal florican. So when we talk about American woodcock, so American woodcock is native to North America. ठीक है, so कौन सी species, bird की species न्यूयॉर्क में मिलती है या वहां की native है? So that is American woodcock and you can see the picture of American woodcock on screen. So answer is C. Moving on to the next question. How many species of birds are located in Greenland? So Greenland में कितनी birds की species हैं? So this question answer you have to remember as such. ठीक है, so options are 5, 56, 6 या 249. So correct answer is 249. So updated जो अभी number of species हैं, like in July 2022 के accordingly it is 249. ठीक है, so Greenland has 249 bird species. Total जो species of birds हैं, that is 249. See, you will see 56 also somewhere in old books या old आपके जो पुराना data है, but according to the current data it is 249 and it may increase or decrease in coming future. ठीक है, so answer is D. Next question is, which place has greatest biodiversity on earth? So biodiversity, bio means life, diversity means variety. So biodiversity is variety of species, variety of plants, animals और other organisms. ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन से प्लेस पे बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे ज्यादा है. ऑप्शंस आर वेस्टर्न घाट. सो वेस्टर्न घाट इज also one of the hotspots of biodiversities in India. ठीक है, so इंडिया में there are 4 hotspots of biodiversity जिसमें से वेस्टर्न घाट आपका एक है. हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटीज आर द एरियाज जहां पे आपको स्पीशीज की रिचनेस है, डाइवर्सिटी मिलेगी स्पीशीज की. जो स्पीशीज वहां पे हैं, 2 स्पीशीज आर एंडेमिक और उनको ह्यूमन से थ्रेट है. तो अगर कोई एरिया ऐसी कंडीशंस, ऐसी क्राइटेरिया को मीट करता है, कौन से 3 क्राइटेरिया मेनली, एक तो वहां पे स्पीशीज रिचनेस है, दूसरा वो जो स्पीशीज है दोज आर एंडेमिक, तीसरा जो है वो है कि वहां की जो स्पीशीज है दोज आर एंडेंजर्ड, उनको ह्यूमन से खतरा है. तो उस एरिया को हम लोग बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर करते हैं, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो वेस्टर्न घाट वन ऑफ द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ऑफ इंडिया. ठीक है, सो वहां पे डेफिनेटली आपकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी है. बट आपको बताना है कि अर्थ के ऊपर, सिर्फ इंडिया का नहीं है, ओवरऑल ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपसे पूछा है कि अर्थ के ऊपर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है. वेस्टर्न घाट, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट, अमेरिकन फॉरेस्ट या फिर अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है. सो अगर रेनफॉल ज्यादा है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड होने वाले कार्निवोर या फर्दर हर्बीवोर वो भी ज्यादा होंगे. सो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है. सो आंसर इज डी, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट has highest biodiversity on earth. Which environments are less seasonal, मतलब कहाँ पे seasons कम change होते हैं, relatively more constant and predictable, मतलब season कम change होते हैं और वो normally constant रहते हैं,
और प्रिडिक्टेबल है, ठीक है, मतलब हमें पता है कि यहाँ पे गर्मी ही रहेगी या ठंड ही रहेगी, तो प्रिडिक्टेबल भी है। ऑप्शंस आर आर्कटिक एनवायरमेंट, टेम्परेट एनवायरमेंट, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट या पोलर एनवायरमेंट, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रॉपिक्स, सो ट्रॉपिक्स आर द एरिया विच आर नियर इक्वेटर। अगर वो इक्वेटर के पास है तो इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट है, तो ट्रॉपिक्स एरिया में भी सनलाइट डायरेक्ट है, ठीक है। ट्रॉपिक्स एरिया में इन कंपैरिजन, टेम्परेट मतलब वार्म, ठीक है, सो इन कंपैरिजन टू अदर थ्री ऑप्शंस, ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट में आपका जो सीजन्स है वो कम चेंज होते हैं, रिलेटिवली टेम्परेचर हाई रहता है, और वो भी जो भी सीजन्स हैं वो आपकी प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा ही रहना है बिकॉज दे आर नियर इक्वेटर। और ट्रॉपिकल एनवायरमेंट में डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज भी ज्यादा होती है, ठीक है। सो आंसर इज सी। सो लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्टिविटी। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए हमें कौन सी, मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कौन सी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। ऑप्शंस आर वाटर, फॉसिल फ्यूल, विंड या सोलर। सो किसी भी कोई भी आप कह लो कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सन। सो सन है, अभी हमने बात करी ट्रॉपिक्स की कि ट्रॉपिकल एरियाज हैं तो मतलब वहां पे डायरेक्ट सन है, डायरेक्ट सन है तो वहां की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उस पर डिपेंड होने वाले हर्बीवोर एंड कार्निवोर भी ज्यादा है, ठीक है। सो प्रोडक्टिविटी के लिए जो मेन एनर्जी है रिक्वायर्ड है, दैट इज ऑब्वियसली सोलर या सन एनर्जी। सो आंसर इज डी। So this was the last question of the session. So for those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to the learners, and we are also helping you for your exam through ExamPT. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors will be there. Mentors will be from your subject only. So they will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and also for skilling your personal and social development. You can reach us out on the number 75949 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.